नमस्कार, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम ते मैं हरकेश सिंह राणा। इस वेले की बड़ी खबर आ रही है करीबी प्रदेश हिमाचल के जिला बिलासपुर की तहसील श्री नैना देवी तो, जिथे कि जोशी मठ की तरह के हालात होने का लोगों के मन के डर बैठ गया है। भू विग्यानी भी इस खेतर को खतरे वाला घोषित कर चुके हैं। साल 1978 इस शक्तिपीठ का एक बड़ा ढिग डिग गया सी, जिस दे विच इस धार्मिक स्थान का बस स्टैंड के नेड़े दी दुकानां, आस-पास के मकान और पहाड़ी की चोटी उत्ते स्थित बाजार और घर ढह गए सन। उस समय दी दरारां अज भी दिखाई दे रही हैं ते लोकां नूं डरा रही हैं। आओ वेखदे हां साडी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले दे विच 5000 फुट की उचाई उत्ते स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी दे विच जेकर पहाड़ां की खुदाई जल्दी ना रोकी गई तो जोशी मठ की तरह यह धार्मिक स्थान भी खत्म होने के कंढे ते होवेगा। जी हाँ, तुसी बिल्कुल सही सुन रहे हो। 1100 बीघा के रकबे दे विच फैले श्री नैना देवी जी के धार्मिक स्थान जोशी मठ वर्गे हालात पैदा कर रहे हैं। इस उच्ची पहाड़ी उत्ते बड़े बड़े होटल, घर ते सड़कां बन रही हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्टां नूं स्वीकार करके मंदिर ट्रस्ट सूबा सरकार भी इस पहाड़ी नूं खोखला कर रही है। इस मामले दे विच साबका मंत्री राम लाल ठाकुर का कहना है कि वह कई बार इस मुद्दे नूं उठा चुके हैं। उन्होंने दस्सिया कि सन 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਵਾਲਾ ਟੋਬਾ ਵੀ ਇਸ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ठाकुर का कहना है कि वह कई बार इस मुद्दे ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पर पिछली भाजपा सरकार ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਠਾਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਦਰ ਟਰਸਟੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। 78 के बाद तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर जो भूस्खलन हुआ था ये 77 और 78 के बीच में हुआ था और उसमें एक नैना देवी का हिस्सा, यहाँ तक कि जो नैना देवी टाउन है उसका हिस्सा भी जो है वो उस डेंजर जोन में मकान जो है वो स्लाइड होके चले गए थे। गवर्नमेंट ने उनकी रिहेबिलिटेशन का काम चलाया, उनको अल्टरनेटिव साइट दी, कईयों को दी, कईयों को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट म्यूनसिपल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ी है, उन्होंने ये कहा था कि नैना देवी जो है वो उसका एक हिस्सा जो है वो डेंजर जोन में है, यहाँ पे कोई
बड़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन या मैं कहूँगा कि भूमि कटान जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो म्यूनसिपल कमेटी नैना देवी है या उसके जो सराउंडिंग के एरिया में जो ग्राम पंचायत के एरिए हैं वहाँ पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसा पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए पूर्व सरकार ने ये जो आधारशिलाएं रखी, उन आधारशिलाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कारण क्या है कि जिस जगह को आपने अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है, लोग उजड़े हैं, टोपा तक उसका प्रभाव पड़ा था। आज कारण क्या है कि सरकार जो चली गई उन्होंने और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया पड़ा था, किसके इशारे पे सारे काम हुए, उसकी बाकायदा तौर पे जो है वो छानबीन होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो अनसेफ जगह है वहाँ पे किस प्रकार से आपने 4 आधारशिलाएं रखी। इसकी मैं कहना चाहूँगा कि जुडिशरी इंक्वायरी हो ताकि सबको पता लग जाए कि कौन आदमी है जो नैना देवी के खजाने के ऊपर डाका डाल रहा है। आज जोशी मठ की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशी मठ में तो नीचे से और भी प्रोजेक्टों के काम चले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना रेलवे लाइन का काम है वो ठीक नैना देवी से नीचे है, 4 लेन का काम है वो और किनारे पे है। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स निकल रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ जो टनल्स बन रही है, उसका प्रभाव भी नैना देवी के इस मंदिर और इस शहर के ऊपर और इस पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये जोशी मठ की तरह जो है माता नैना देवी के भी यहाँ पे इस प्रकार का स्खलन हो और लोगों की तबाही हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ तुरंत इन सारे कामों को बंद किया जाए। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि सन 1978 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जो है वो बह गया था और वो बेचारे इधर उधर रहे। और नैना देवी में आबादी में भी दरारें आ गई थी और कईयों के घर अभी भी असुरक्षित है। तो यहाँ जो पानी का जो निकास है वो सही नहीं है और जो कार्य इधर उधर लगाए हुए हैं या पहाड़ी खोदा जा रहा है, इसको बंद किया जाए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जैसे कि अब उत्तरांचल में हुआ है और वहाँ ज्योति मठ जो है वो भी असुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार नैना देवी के आबादी का भी और साथ में जो लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके दुकानों में दरारें नहीं हैं तो उनका भी देख रेख करके सुरक्षित किया जाए। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जल आया था, लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है वह जर्जर पहाड़ है, इस पे ओवरलोडिंग ना की जाए, क्योंकि जो 1978 में जो लैंडस्लाइड हुआ था, मैं और मेरा परिवार भी उसमें प्रभावित हुआ था। हमें रातों रात अपने मकान छोड़ करके वहाँ अन्य जगह पे जाना पड़ा था, परंतु उसके बावजूद आज की तारीख में पिछली जो सरकार थी उसने नैना देवी के अंदर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किए और इतनी ज़्यादा प्रपोजल बना दी जिससे कि नैना देवी की पहाड़ी पर जो है बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। और हाल ही में जो उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है और उसमें सैकड़ों परिवार जो उसमें प्रभावित हुए हैं, वहाँ की जो ज़मीन धंस गई है, उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पहाड़ी पर जो है ओवरलोडिंग हुई है, इस पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में नैना देवी में जो नैना देवी की जो पहाड़ी है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद कर दी जाए। अनावश्यक जो यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं उनको टोटली बंद किया जाए ताकि यहाँ के और नैना देवी के लोगों को किसी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े और जो विश्व विख्यात यहाँ का जो मंदिर है उस पर कोई किसी किस्म की जो है वो खतरा ना हो।